which property we have to use. Yesterday I have given remark to you. So you have to just remember all that 5 remarks. Then we will begin the exercise. Now see beta question number 1. Integral 0 to pi by 2 cos square x into dx. Now let me take this question, integral 0 to pi by 2. I am taking sin square x into dx. So you have to do it. Beta, this is equation number 1. Beta, which property, at least please give me answer. Which property we will use here? Either see, listen, you can do. Yes ma'am. Yes beta. मैम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे मैम जिसमें वो मतलब a प्लस बी माइनस एक्स वाली जो थीटा में आ जाएगी. Yes, that is 0 to a property. 0 to a. Integral 0 to a f of x into dx. Yes ma'am. Yes. Integral 0 to a f of a minus x into dx. वो property use करेंगे. But suppose if they are not saying using properties, then you can write this can be written as 1 minus cos 2x upon 2. बेशक आप कर सकते हैं, you have alternate method. But if you use, why we are using properties? To bring the integrand function into simplest form. This is another method. जैसे partial से एक fraction को simplest form में किया, trigonometric identity use करके simplest form में लेकर आए हैं. So we have seen lot of methods how to bring the integrand function into simplest form. This property is also one of the way to bring the function into simplest form. So easy आप property use करोगे. So easy question में property in case what property I told you, integral 0 to a f of x into dx, that is equal to integral 0 to a f of a minus x into dx. That property I told you. Now if I use this property, now I equal to integral 0 to pi by 2 sin square, instead of x replace a minus x into dx. Now that is equal to integral 0 to pi by 2 sin 90 minus theta becomes cos theta. But if you are using that is 1 and 2 का कोई ना कोई 100% link बनेगा. If there is no link, then what we have to do, that's I will tell you later on. Now 1 and 2 see, I am adding 1 plus 2 beta. We will get identity here. So this side also I plus I, that is I plus I, that is equal to integral 0 to pi by 2 is a common. In given sin square x, and we, after using property we are getting cos square x into dx. Now that is 2i equal to integral 0 to pi by 2 into dx, that is equal to x. The limit they have given 0 to pi by 2. Upper limit is pi by 2, lower limit is 0. So I equal to, this is standard question. So I equal to pi by 4. This is one of the most important question beta. So question number 2 you have to do homework बेटा. मैं question number 3 करती हूँ. So जो homework करना है वो मैं बता देती हूँ बाद में. पहले let me listen. Now see question number 3. Integral 0 to pi by 2. Integral 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 x into dx the whole upon क्या देता है sin power 3 by 2 x और plus cos power 3 by 2 x into dx. Now listen बच्चे here. Now that is given, always you take it again same property beta, again same property, that is equation number 1. So again same property, 0 to a property. So now if I use this property, integral 0 to pi by 2, so this becomes sin power 3 by 2 into pi by 2 minus 6 the whole upon, this becomes sin power 3 by 2 into wherever x replace a minus x, cos power 3 by 2 into pi by 2 minus 6 into dx. Okay, now that is equal to integral 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 becomes क्या हो जाएगा बेटा, cos power 3 by 2 x the whole upon, this becomes cos, this becomes a sin. So I am writing first to sin x and then plus cos power. I told you this becomes a sin, I have written here, this becomes cos power 3 by 2 into dx. That is equation number 2. Now see 1 and 2, it is easy to bring the integrand function into simplest form beta. So 1 plus 2 if I do it, then 2i equal to integral 0 to pi by 2. Their numerator is sin power 3 by 2x and here is cos power 3 by 2x into dx. The whole upon denominator both are same, take the LCM 3 by 2x and then plus cos power 3 by 2x, it will be cancelled. We will get simply dx x, the limit is 0 to pi by 2. So that is equal to upper limit minus lower limit, only pi by 2, lower limit is 0. So I equal to pi by 4. The same way you have to do question number. बच्चे देखना question number 2 is a homework. The homework questions are question number 2, 1 and then 2 and then question number 4 same type question beta.
And then question number 15. Question number 15, you have to add it. Question number 15. Question number 15, you will get a 0. If you are using property, then numerator will be cancelled. You will get it a 0. Same type questions using this property. 1, 2, 4, 15. You have to do homework. Now see, beta, I am taking question number 5. Question number 5, and then question number 6, question number 7, and then question number 18. I will do any 2 questions. First, let me do question number 5. Integral minus 5 to 5 modulus x plus 2 into dx. बेटा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे बच्चे? प्लीज गिव मी आंसर. माइनस ए टू ए वाली. बच्चे आई टोल्ड यू सी माइनस ए टू ए तो ठीक है बेटा, और यहाँ पे मॉडुलस भी तो आ रखा है बेटा. What I told you, in case आपका हम उसके बाद दो कर लेते हैं डिफाइन मॉडुलस को. हाँ बेटा, सबसे पहले मॉडुलस को ओपन करना है. दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करोगे. सो मैंने बोला आपको 2 एट ए टाइम से 2 प्रॉपर्टी अकर हो रहा हो, देन ऑर्डर का प्रायोरिटी देना. यहाँ माइनस ए टू ये भी आ गया एंड देन मॉडुलस भी आ गया. सो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले मॉडुलस को ब्रेक करो, अपने आप ये भी ब्रेक हो जाता है. सो वो प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं अब क्वेश्चन था. हाँ बेटा, अब ठीक से सुन लेना बेटा, ये ब्रेक कैसे करते हैं, वो सी का वैल्यू हमें निकालना है. अब मॉडुलस x प्लस 2 का डेफिनेशन आई हैव गिवन बेटा, ऑलरेडी आपको पता है ये वाला डेफिनेशन. दैट इज यहाँ पे इफ x इज नेगेटिव होगा x प्लस 2, इफ x इज लेस देन माइनस 2. ये बात सभी को पता है ना बेटा. पॉजिटिव होगा इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाटएवर यू टेक इट. मतलब ब्रेकिंग पॉइंट जो सी था ना वो आ गया आपके पास -2. हाउ टू टेक दिस, यू नो अबाउट इट. मॉडुलस का डेफिनेशन, मॉडुलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव होगा इफ x प्लस 2 लेस देन 0 और x इज लेस देन -2. पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू अबव -2 हो जाता है. सो अब देखना, सो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है -2. इसका मतलब -5 और 5 के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट आ गया आपका -2. So अब this I can be written as this interval can be written as integral -5 to -2. इधर देखना बेटा, बिलो -2, बिलो -2 कहाँ तक आ सकते हो आप? -5 तक आ सकते हैं, लिमिट गिवन है. बिलो -2 पे नेगेटिव वैल्यू लेना है बच्चे, x प्लस 2 इंटू डी एक्स. एंड अबव -2 टू कहाँ तक जाओगे? -2 टू 5 तक जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे. सो मॉडुलस को मैंने ब्रेक कर दिया, आपका लिमिट भी ब्रेक हो गया. बात समझ आया बच्चे ये वाला टर्म? से यस नो बेटा प्लीज. यस मैम. यस मैम, बट हम इसमें सीधा वो भी तो लगा सकते हैं -a to a, उसके बाद हम सीधा पॉजिटिव वाला ले लेंगे. -a to a अगर आप देखते तो 0 to 5. बच्चे नाउ लिसन, मैंने आपको क्या बताया, ये इधर देखो बेटा, फिर उल्टा सीधा आपको क्वेश्चन जाएगा. आपको 2 प्रॉपर्टी एट ए टाइम पे अकर हो रहा हो, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको देने पड़ेगा. उसी बेसिस पे सबसे पहले मॉडुलस आएगा, मॉडुलस को ब्रेक करो. इन केस दोबारा -a to a प्रॉपर्टी आ रहा है तो देन यू कैन यूज इट. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग बच्चे? सो ऑर्डर को ब्रेक. नाउ सी बेटा, द सिंपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस में बहुत ध्यान रखो. -2x, the limit is -5 to -2, and then if I integrate this part, x square by 2 and then plus 2x, the limit is -2 to 5. Now that is equal to, if I substitute this limit बेटा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, बच्चे बहुत ध्यान से लिमिट रखना, and then -2 into -2 plus 4, अपर लिमिट रख दिया मैंने. Now माइनस लोअर लिमिट रख रही हूँ, माइनस ऑलरेडी है, सो -25/2 and then -5 into 2, सो ये +10 हो जाएगा बेटा. अपर माइनस लोअर, ऐसे सेम हियर इज आल्सो अपर 25/2 and then +10. माइनस लोअर रखूंगी, ब्रैकेट में रखूँ माइनस. बहुत ध्यान से करो, 4 मार्क क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा. सो -2 का स्क्वायर दैट इज 4/2 एंड देन -4. ठीक है, अब ध्यान से कैलकुलेशन को करो. सो ये -2 दैट इज +2 हो जाएगा, +25/2 एंड देन -10 एंड देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25/2. ये ऐड कर दूंगी इसको, और ये हो जाएगा +10 एंड देन ये हो जाएगा आपका 2 - 4 +2 हो जाएगा बेटा. इट विल बी कैंसल. ये आ जाएगा आपका 50/2, सो दैट इज 25 हो जाएगा. सो 25 + 4 आपके पास आंसर आ रहा है बेटा 29. समझ आया बच्चे ये वाला? से यस नो? यस मैम. यस मैम.
बेटा बच्चे यस बेटा यस मैम। नाउ लिसन बच्चे, एक मिनट सुन लेना बेटा। सो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, यहाँ पे x प्लस टू इक्वल टू जो मॉडुलस के अंदर है इक्वल टू 0 रख देना। x का वैल्यू क्या आएगा -2। सो ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन में क्या आएगा -2। सो दैट इज -5 -2 एंड +5। लोअर वैल्यू में -2 से नीचे वैल्यू में हमने नेगेटिव लिया, -2 से अपर वैल्यू में क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अब शॉर्टकट वो डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा बेटा। अब ये क्वेश्चन समझा रही होमवर्क में करोगे। इधर देख, नाउ x - 5 इक्वल टू 0 रखो, x का वैल्यू क्या आएगा 5। इसका मतलब जो ब्रेकिंग पॉइंट है मॉडुलस आ गया। लिमिट्स आर डिफरेंट बट प्रायोरिटी बेसिस में मॉडुलस को पहले ब्रेक करना है। सो इसलिए वो प्रॉपर्टी यूज कर रही है बेटा। अब 2 to 8 के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट आया आपके पास दैट इज 5। सो अब इसको 2 से 5 मतलब 5 के नीचे नेगेटिव, 5 के ऊपर पॉजिटिव। अब कैसे इसको डिवाइड करोगे बेटा, -2 to 5 नेगेटिव वैल्यू ले लिया मैंने, x - 5 into dx and then plus above 5 पे इंटीग्रल 5 to 8 पे। सो नॉट नेसेसरी टू राइट दैट डेफिनेशन। सो आप यू आर सो ग्रोन अप, आपको पता है मॉडुलस को कैसे ब्रेक करना है। आप समझ आ गई बेटा कैसे ब्रेक करना है, कर लोगे आप होमवर्क में सिंपल इंटीग्रेशन लिमिट। यस मैम। ओके बेटा। Now same way the question number 18 is also homework. Question number 18 and question number 6 both are homework. So I am erasing this one. I hope so you are clear. Now let me take better question number 7. Question number 7. So this question number 7 and any question is similar. Question number 9 one and the same thing. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कर रही हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ ऐसे आप 9th क्वेश्चन कर लेना, सेम टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा है, इंटीग्रल हमेशा आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x into 1 minus x का होल पावर है। इवन इसी क्वेश्चन में आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज ना भी दिया हो, बिना प्रॉपर्टी का आप कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि होल पावर है। वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकती, आपका एलिमिनेट होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। अब आप इसको करोगे, इन केस बाई पार्ट्स भी करोगे ना, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करने से 1 होने की चांसेस है। नाउ चलो यही हम प्रॉपर्टी यूज करके कैसे कर सकते हैं। समडे ना वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी, कोई क्वेश्चन याद था बेटा मुझे, कुछ क्वेश्चंस में बोला है ये यूज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, द डे आई एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी इंटीग्रल दैट इज आई थिंक e power 2x into 1/x minus 1/2x², ऐसे कुछ क्वेश्चन था। उसमें कुछ बच्चे ने बोला इसी 2 को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल के मैंने बोला था मैम। इधर देखिए e power 2x है, इन केस 2 को बाहर निकालूं ये आ जाएगा आपके पास 2 क्या आएगा x होगा -1 upon x², यही होगा ना 1 upon 2 यही आएगा। सो 2/x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे आ रहा है बेटा इसमें? मैम मैं कह रहा था जो आपका e⁻²x का सबसे पहले डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो वो 2 बाहर आया होगा, देन नीचे आपका 1/x होगा साथ में इनटू में। तो मैम देन 1/x का डिफरेंशिएशन बाद में तो 1/x² मतलब -1/x², तो वैसे था। अनलेस अंटिल इसका डिफरेंशिएट नहीं करोगे आपका रिजल्ट आएगा नहीं। एम आई करेक्ट? सो इसका मतलब डायरेक्ट आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बच्चे इसमें आंसर का, ये बात को ध्यान रखना थोड़ा। मैम e को e⁻²x को अंदर ले जाते हैं मैम।
अगर वैसे कह रहे हो तो अंदर लेके भी आपको क्या करने पड़ेगा बेटा, जब तक बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं करोगे नहीं कैंसिल होगा बच्चे। करके देखो, आपको बाई पार्ट्स तो अप्लाई करने पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता आपको। अब करके देखो, पता चलेगा। आपने बोल दिया उस टाइम, मैंने हाँ बोला, देन आफ्टर आई वाज थिंकिंग कैसे होगा। सो करके देखो, पता चलेगा। द सेम थिंग यहाँ पे भी बेटा, आप इन केस प्रॉपर्टी यूज करोगे, इट इज इजी टू ब्रिंग द इंटीग्रेंट फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। वही a माइनस एक्स का प्रॉपर्टी यूज करोगे, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 वेरेवर x रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। अब रिप्लेस करोगे बेटा ये 1 माइनस एक्स, आप जस्ट क्लोज योर आईज, व्हाटएवर आई से लिसन टू मी, वेरेवर x रिप्लेस a माइनस एक्स। सो ये क्या बताया, 1 माइनस इसी x की वजह से 1 माइनस एक्स होल पावर n इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करियो, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटू 1 कैंसिल होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस x पावर n इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 का कोई लिंक है। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 और 2 का कोई लिंक है ही नहीं, ऐड कर ही नहीं सकते हो, देयर इज नो यूज। सो अब डायरेक्ट आप एलिमिनेट करो। आई ब्रॉट दी फंक्शन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकती थी। अब ये तो सिंगल पॉलिनोमियल है, सिंगल पॉलिनोमियल मतलब इसको ओपन करने की जरूरत है। इसको सिंपल ओपन करोगे, इंटीग्रल 0 to 1 x पावर n माइनस x पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ आई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x पावर n प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा n प्लस 2, द लिमिट इज 0 to 1। नाउ अपर लिमिट रखो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस लोअर अपर लिमिट रखो यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा बेटा। इफ आई टेक एलसीएम n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 द होल अपॉन n plus 1 into n plus 2. Now if I simplify, I will get result that is 1 upon n plus 1 into n plus 2. This is also one of the repeated question. Even entrance में question देते हैं बेटा, सीधे ऑप्शन में ये दे रहता है, सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, आपको इमीडिएट आंसर निकालने के तरीका आना चाहिए। Now see बेटा question number 8. This is one of the repeated question, most important question number 8. So 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, इंटीग्रल 0 to pi by 4 log क्या दे रखा है 1 plus tan x into dx. I told you this is one of the most important question बेटा. Now given always we will take equation number 1. Equation number 1 आपको 0 की a प्रॉपर्टी, so 0 की a प्रॉपर्टी पहले यूज करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। So log of 1 plus tan a minus x. सपोज आप इंटीग्रेंट फंक्शन को दूसरी तरीका से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, नो ऑब्जेक्शन, बट यूजिंग प्रॉपर्टी दे दिया, यू हाउ टू यूज दी प्रॉपर्टी एट एनी हाउ, आप लास्ट में यूज करो, बिगिनिंग में यूज करो, आपका चॉइस है, बट ये प्रॉपर्टी यूज करना जरूरी है इन केस दे से यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ सी बेटा, यहाँ पे tan 90 माइनस होता है तो यूज कर सकते हो, tan 90 माइनस बिकम्स cot, बट यहाँ पे 45 है। सो tan a माइनस b फॉर्मूला के अलावा आई डोंट हैव एनी अल्टरनेट एट ऑल, सो मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, इंटीग्रल 0 to pi by 4 log, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा tan pi by 4 माइनस tan x द होल अपॉन 1 माइनस क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस tan pi by 4 इंटू tan x, ओके, इंटू क्या हो जाएगा dx। Now that is I equal to integral 0 to pi by 4 log, ये हो जाएगा बेटा आपका 1 minus tan x the whole upon, ये प्लस है बेटा 1 plus tan x into dx, और ये 1 plus d है, ठीक है ना, 1 plus, ठीक है 1 plus ये 1 हो जाएगा upon this। Now that is equal to integral 0 to pi by 4, if I take LCM, इसको LCM निकालो 1 plus tan x और प्लस 1 माइनस tan x द होल अपॉन क्या जाएगा 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। जस्ट सिंप्लीफाई करने के तरीका कुछ नहीं कर रही हूँ बेटा, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। सो 2 अपॉन 1 प्लस क्या आ रहा है बेटा आपके पास tan x इंटू डी एक्स, गिवन ऑलवेज वी हैव टेकन इक्वेशन नंबर 1। सो log m by n फॉर्मूला, इफ आई यूज log m by n फॉर्मूला, that is I equal to integral 0 to pi by 4 log m log 2 into dx, एक पार्ट बनेगा बेटा, माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 4 log क्या हो जाएगा 1 plus tan x into dx अनदर टर्म हो जाएगा। अब देखना मैं इसका इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ, सो इक्वेशन नंबर 2 ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, log 2 इज अ कांस्टेंट बच्चे, log 2 इज अ कांस्टेंट, दैट्स कीप इन योर माइंड, ये 0 to pi by 4 log 2 इज कांस्टेंट, ये तो log 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेट करोगे। अब 1 और 2 को मैं ऐड कर देती हूँ बेटा, ऐड करूंगी दोनों कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 1 plus 2 करूँ, 1 plus 2 implies,
सो दैट इज 2i इक्वल टू, बेटा इट विल बी कैंसल, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधे लिख देती हूँ 2i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट इंटीग्रल 0 to pi by 4 dx, इंटीग्रल 0 to pi by 4 into dx, that is equal to 2i equal to, we are getting, so इसका अपर लिमिट that is x हो जाएगा बेटा log 2, so into x, बेटा x को अलग रखना, साथ मत कर देना, pi by 4 आगे आ जाएगा, pi by 4 into log 2, or otherwise this is another repeated question बच्चे, log 2, this is our perfect answer. Are you clear? Now see better next another question, question number 9 I told you do it homework. Now question number 10, question number 10 क्या करेगा बेटा, 0 to pi by 2 2 log sin x, 2 log sin x minus log sin 2x into dx. बच्चे सी आप प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी को यूज करना है बेटा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी आपको प्रॉपर्टी जबरदस्ती बिगिनिंग में यूज करना है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी वेयर एवर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ इफ इट इज पॉसिबल यू शुड ब्रिंग द फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्टली. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि log आ गया, आई कैन राइट दिस इज n log m पावर n, वो लिख सकती हूँ. इसको log sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकती हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ into dx. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 4 log, सो ये हो जाएगा sin square x द होल अपॉन sin 2x को log m by n, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m by n. सो sin 2x का क्या लिख रही हूँ, 2 sin x into cos x into dx, एक sin कैंसिल हो जाएगा, so that is equal to remaining term what we have integral 0 to pi by 4 log we have sin x upon 2 cos x. इसको बेशक आप एक काम कर सकते हो, tan x upon 2 करना है तो कर सकते हो, वो आपका चॉइस है. 0 to pi by 2 है बेटा, लिमिट इज 0 to pi by 2 नॉट pi by 4. ओके, नाउ अदरवाइज log m by n, log m माइनस n का फॉर्मूला यूज करना है कर सकते हो, आपका चॉइस है. इंटीग्रल 0 to pi by 2 log, इसको log m by n फॉर्मूला यूज कर रही थी, सो log m माइनस log n, 2 cos x को भी अलग अलग कर रही हूँ बेटा, माइनस log n में ये आ जाएगा 2 cos x को, सो माइनस क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ, dx बाद में कर देती हूँ, माइनस log 2 और माइनस log cos x into dx. बच्चे आप लोगों का समझ आया होगा, log m by n का फॉर्मूला यूज किया, log m माइनस log n, ये m into n में जाएगा, m प्लस n, माइनस ओपन करूंगी, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया. अब इधर देखो इसमें प्रॉपर्टी, अब वेरेवर नेसेसरी यू कैन यूज दी प्रॉपर्टी बेटा. इंटीग्रल 0 to pi by 2, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करूंगी, log साइन क्या हो जाएगा, pi by 2 माइनस x, और ये तो log 2 कांस्टेंट है आपका, माइनस log 2 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 0 to pi by 2 यूज करो, माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 2 log cos x into dx एज इट इज रखना. बच्चे आप लोगों का समझ आ रहा होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा. सो log 2 इज कांस्टेंट माइनस log 2 into x का इंटीग्रेशन, x कर दिया pi by 2 को भी आगे ले लेती हूँ मैं, सो दैट इज इक्वल टू माइनस pi by 2, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें बेटा, pi by 2 रखे, ये 2 कर देना बच्चे गलती से, सो pi by 2 माइनस pi by 2 into log 2. आर यू क्लियर बेटा? सो से बच्चे यस मैम. ठीक है, लिखो, कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो यू कैन आस्क मी. लिखो बेटा प्लीज.
हैव यू रिटन बेटा? यस बच्चे? राइट फास्ट बेटा, राइट फास्ट. राइट फास्ट बच्चे. बेटा हैव यू रिटन? यस. जस्ट अ मिनट बेटा. बेटा check the board visibility. Is it okay? Yes, sir. Okay beta. Now listen next one. Now see beta, next to this question number, I am taking question number, we have done question number 10, then question number 11. Beta 11th one, let me do it. Question number 11, integral minus pi by 2 to pi by 2 sin square x into dx. Now tell me beta, which property we will use here? Yes बच्चे, which property we will use? बेटा बोलो. माइनस ए टू ए वाली. Yes, exactly. Well done, beta. Minus a to a. This is equation number 1. Well done. Very good recognition. Now you have to check odd even. Minus a to a, when you say, you have to check whether the integrand function is even or odd. Now what is f of x here? F of x is sin square x. But I am checking odd even. Replace x by minus x. That is sin of minus x का whole square. Now sin of minus x minus sin x का whole square, it becomes positive आ जाएगा बेटा sin square x. So f of minus x is equal to, we are getting equal to f of x. This implies fx कौन सा function है बेटा? fx is even function. Even function. Well done. Even function. Yes, even function. Now what result is saying by the property? Twice of integral 0 to a. If fx is even, then minus a to a can be written as twice of integral 0 to pi by 2. So this becomes sin square x into dx. Already I have done the same type of question. So that is equal to, you go for now properties. Yes, ma'am. So I equal to twice of integral 0 to pi by 2. So sin square x, that is sin square means sin square pi by 2 minus x into dx. Now that is equal to twice of integral 0 to pi by 2. That becomes cos square x into dx. That is equation number 3. Now 2 plus 3, if I do it 2 plus 3, so this implies what I will get it written. So that is 2i equal to twice of integral 0 to pi by 2. Sin square plus cos square becomes 1 हो जाएगा बेटा. That is यहाँ पे 2, ये वाला 2 लिखी हूँ बच्चे. So that is 2 cancel. That is equal to x हो जाएगा 0 to pi by 2. So the final answer we are getting pi by 2. Are you clear बेटा? Are you clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Question number I am taking 12. बस इसके बाद बाकी questions कल देखेंगे हम. So ये question number 12, I think time is running. Let me do one or two questions. I will do it. 0 to pi x into dx. Instead of this question, 12th question you have to do better. I am doing one of the example question. So you have to do this question as a homework question number 12. This is one of the repeated example question है बेटा. That's why I am taking. Whatever I am doing, उसी question में question number 12 में क्या करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, difference बता देती है. Anyhow, जो प्रॉपर्टी यूज कर रही है वही आपने भी करना है. So this is equation number 1. बेटा x into
sin x, इधर देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ ही एक अलजेब्रिक टर्म आता है ना, आइदर बाई पार्ट से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे, नहीं ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। वंस अगेन मैं क्या बता रही हूँ, एक अलजेब्रिक टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्बिनेशन आ जाता है, दो वेज आपके पास, एक तो बाई पार्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हो, नहीं ये तो प्रॉपर्टी से यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे। आप इजी तरीका कौन सा, इन केस लिमिट नाउ आई डोंट हैव एनी अल्टरनेट, आई हैव टू गो फॉर बाई पार्ट्स, बट लिमिट दिया हो ना 100% आपको प्रॉपर्टी से, यूजिंग प्रॉपर्टी ना भी दिया हो तभी भी प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। आपको अच्छी तरह मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। नाउ अब आप यूज कर रहे हैं बेटा सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 व्हाटएवर आई हैव गिवन, रिप्लेस x बाय a minus 6 5 minus 6 एंड देन साइन क्या होगा बेटा 5 minus 6 द होल अपॉन 1 प्लस cos 5 minus 6 ये स्क्वायर हो जाएगा into dx। Now that is equal to integral 0 to pi 5 minus 6 into sin 180 minus theta cos theta into dx the whole upon 1 plus this cos square becomes क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी cos 180 sin 180 minus theta क्या होगा बेटा, sin 180 minus theta sin theta। बच्चे प्लीज आंसर। and cos 180 minus theta, yes ma'am sin theta, cos 180 minus theta becomes माइनस cos theta होगा, बट वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ बेटा ये पॉजिटिव रहेगा, so 1 plus cos square x into dx, that is equation number 2। okay, now 1 plus 2 100% लिंक बनेगा, 1 plus 2 implies 2i equal to integral 0 to pi बेटा ये जो अटेंडेंस लेते हैं ना वो एक बार बिगिनिंग में कौन थे, अब कौन एब्सेंट है ये मुझे बता देना बेटा प्लीज़। बिगिनिंग में कौन प्रेजेंट थे, अभी किसी एक को मैंने रिमूव किया बच्चे, वो कौन है मुझे बता देना प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखे आइदर 12th E 12th B 12th A, इन तीनों इंचार्जेस से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बच्चे के मैंने रिमूव किया अभी, ठीक है, वो किसको मैंने रिमूव किया वो मुझे बता देना। नाउ 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, अब ऐड करूंगी बेटा इसको 1 प्लस 2 को, सो न्यूमरेटर में वहाँ पे x sin x है, सो sin x कॉमन हो गया, सो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू क्या होगा sin x इंटू डी एक्स द होल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 plus cos square, कैंसिल हो जाएगा। सो 2i इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट बाहर रखना बेटा 0 टू पाई, so that is sin x into dx the whole upon 1 plus cos square x। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे x कैंसिल हो जाएगा, 1 upon 1 plus sin x आ जाएगा। मैंने आपको बिगिनिंग में एक नोट लिखवाया, याद करो, 1 plus sin x, so 1 plus r minus sin x, 1 plus r minus cos x, sec x plus r minus tan x। आता वो डिनोमिनेटर में क्या करने के लिए बोला बेटा, यस बच्चे थोड़ा जल्दी टाइम रनिंग है, कैन यू रिमेंबर, रेशनलाइज करोगे सो दैट आइडेंटिटी आ जाता है बेटा, ठीक है ना। ओके मैम याद आ गया, यस मैम। माइनस sin x होगा, नीचे cos स्क्वायर x होगा, फिर sec स्क्वायर माइनस tan x into sec x आ जाएगा। सो वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में करना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नाउ दैट इज 2i i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई। सो अभी इसके लिए क्या करोगे बेटा, इसके लिए cos x इज इक्वल टू t दे दो, कैसे तरीका आपको सीखना yes, है। हाँ बेटा sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी, लिमिट भी चेंज कर दो, व्हेन x टेंड्स टू 0 cos 0 t टेंड्स टू 1, when x tends to pi cos 180 cos 90 plus 90 becomes minus sin 90 becomes minus 1 हो जाएगा। now I equal to ये pi by 2 इंटीग्रल लोअर लिमिट आया 1 अपर लिमिट -1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा लिमिट को चेंज करना है प्रॉपर्टी यूज करके, बेशक आप यूज कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है बेटा। सो -1 to 1 dt अपॉन, सो तरीका से करना है करो, नहीं है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है करो, दैट इज अप टू योर चॉइस। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, so that is -1 to 1, now that is equal to pi by 2 into tan inverse 1 and then minus tan inverse of -1, बेटा -1 minus pi by 4 plus pi by 4 हो जाएगा, pi by 2 into pi by 4 plus pi by 4 2 pi by 4 हो जाएगा, so that is equal to pi by 2, that is equal to final answer pi by 4। सही है बच्चे, pi square by 4। yes ma'am। बेटा प्लीज
जो that student है ना is creating lot of problem. Yesterday I requested him, he disturbed a lot in next group C section and D section का. आज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वो बच्चा मतलब इसी ग्रुप में है. He has started here is also I removed him. So please find out and tell me who's that fellow. Okay, ma'am. I'm doing try.